eggplants, and huh? Is it tomato? Yes. You eating tomato or not? Today they cook tomato. Tomato coming today? The paneer sabji, chakachak. Actually, tomato is not mentioned in Hari Bhakti Vilas. Some are taking, some not taking. But there are so many arguments about eating tomato. Anyhow, before you know what Kesavji Gurumar also tomato is taking. Then once big flood came in Mathura, that time tomato price is what? 4 times. That time Gurudev told, no need to take tomato. Actually, this is the reason. I saw also in all our temples, they are eating tomato. Then slowly, then Gurudev also told again, okay, Kartik should not eat. Actually, this tomato is not mentioned in Hari Bhakti Vilas. Anyhow, you can eat or not, this is not our subject. And so now coming in this way, main thing is what? In this Chaturmasya, you have to be intense to bhajan and sadhana more and more. Absorb in bhajan and sadhana. The main thing. So, mainly Advaita Sampradaya, Ekadandi Sampradayas. They are following the many rules and regulations. That Sanskrit word that is called Ekadandi Sampradaya. Ekadandi Sampradaya means that is called Advaitavadi. Those who are following the rules and regulations, Sankar Sampradayas, and how to merge in a Brahma. Aham Brahmasmi. Ekadandi Sampradaya, because at the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, most of the sannyasis, they followed Sankar philosophy. So that is called Ekadandi Sampradayas. Ekadandi Sampradayas, they follow these rules and regulations also. And very strict rules and regulations. एकदंडी संप्रदाय में विधि था क्यों लोग वैराग्य के ज्यादा प्राधान्य देते हैं समझ में आ रहा है दे गिव टू मच इंटेंस फॉर द वैराग्य मीन्स रिनाउंसिएशन आराधितो यदि हरि तपसा किम नाराधितो यदि हरि तपसा किम अंतर बहिर यदि हरि तपसा किम नंतर बहिर यदि हरि तपसा किम Mahaprabhu told this. You are performing hard austerities, but if you are not intense to bhajan sadhan to divine Radha and Krishna, what is the meaning of austerities? Vairagya. You understand? Because Ekadandi Sampradayas and Advaitavadis, they are not giving intense to perform bhajan sadhan to Radha and Krishna. Their aim and object how to merge in Brahma. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited this verse, Aradhito Jadi Hari Tapasake. If you worship divine Radha and Krishna, what is the meaning of austerities? Or if you not perform bhajan sadhana to divine Radha and Krishna, what is the meaning of austerities? Naradhito Jadi Hari Tapasake. Or Aradhito Jadi Hari Tapasake. Nantar Vai Jadi Hari Tapasake. One who completely absorbs Radha and Krishna in outside, inside. So what is the meaning of austerities? Vairagya.
Vairagya need also this. Vairagya yug bhakti rasang prajatni apayanamam anubhivsandam kripam buddhirija paradukha dukhi sanatanastam prahumasrayam. Vairagya means not just eating or performing hard austerities. Vairagya means Vishesh Raga. This is deep attachment to perform bhajan sadhan with divine Radha and Krishna. वैराग्य के तात्पर्य क्या है? विशेष राग. राग मीन्स डीप अटैचमेंट, आसक्ति. इसमें आसक्ति होनी चाहिए अपने भजन में, नाम भजन में, हरि नाम में आसक्ति होनी चाहिए. हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम राम राम. If you not deep attachment, asakti with Harinam, Hari Katha, are only external and performing hard austerities, so what result will you get? कि भगवान में भजन नहीं किया, केवल वैराग्य करके क्या फायदा है? इसलिए वैराग्य की तात्पर्य विशेष राग. विशेष राग मीन्स if you give more intense of your bhajan and sadhana, more give to deep attachment with your Ishtadeva. Which our Ishtadeva? Srimati Radhika. Radha Dasam. Radha मेरी सामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो, वृंदावन को वास. Srimati Radhika, she is my mistress. So you have to give intent how to become the maid servant of Srimati Radhika. But you have to follow all the rules and regulations. If you not follow the rules and regulations, if you think I am Ekantiki Bhakta 1.8 with divine Radha and Krishna, that types of devotion is called disturbance devotion. Suti Smriti Pancharatri Naradadi Pancharatri Viding Vina Vaikantiki Harir Bhakti Utpadaki Kevalam. And Utpadaki Kevalam. If you not follow the rules and regulations of Shruti, Veda, Puranas, Narad Pancharatra, all the rules are there. That times of your devotion service, that is called disturbance and bhakti. And for this, क्या बोले? श्रुति स्मृति नारदादि पंचरत्न विधि बिना एकांति की हरिर भक्ति उत्पादकी केवलम. विधि को मानना पड़ेगा. विधि भक्त रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश. How to enter in rag margo? Rag margo means spontaneous love and affection with divine Radha and Krishna. स्वाभाविक राग किसमें होनी चाहिए? राधा कृष्ण होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं? किंतु कैसे करोगे? राग कैसे होगा? ब्रजवासी जन, those who are the eternal associate of Krishna, Krishna Parikar, in their heart spontaneous love and affection with Krishna. For this regard, they are called Brajavasi. Yes, who is called Brajavasi? Those who are the eternal associates of Krishna, Krishna's Nitya Parikar. Radha, Lita, Visakha, Nanda, Jasoda, Subal, Siddham, Raktapatrak. They are called Brajavasi. Because they are not Jiva Tattva. They are called Parikar Tattva. In their hearts, spontaneous love and affection with Krishna. And when they milking the cows, perform their household duties, automatically their mind absorbed with Krishna. Jaduhane, avanane, matana pralepa,
प्रेङ्चैच्छनार्द्वोरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्तु चैनोनुरक्त धियो श्रुकण्ठ धन्ना व्रजस्त्रियो उरुक्रमचित्तजानो धन्ना व्रजस्त्रियो उरुक्रमचित्तजानो. Sukadeva Goswami Pad told. When Braj Gopis, they milking the cows. And automatically their mind absorbed with Krishna, Krishna now. Jaduhane, Abhanane, Matana Prale. Even they cleaning their coaches. Automatically their mind absorbed with Krishna. And when they chant, when they recited Krishna's name, their heart completely melted and tears rolling down. Because they have spontaneous relationship with Krishna. As like all our senses automatically absorb with all our object of the senses, spontaneous. And our eyes are going by the beautiful form, Rupa. Our ears, where is going? Continuous going to the sweet sound. And आंख कहाँ चली जाती है? जहाँ पर सुंदर गुलाब खिले हो, जैसे फूल ऐसे के सुंदर है, चले जाते हैं. क्योंकि आंखों की स्वाभाविक वृत्ति है ये, इसे कहा जाता है स्वाभाविकता. क्या बोला? स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस. उसी प्रकार ब्रजवासी के जो क्रिया आदि जो है वो स्वाभाविक रूप में कृष्ण में लग जाते हैं. जो भी काम कर रहे हैं, यथा विषयानी ना, एज लाइक द मेटेरियलिस्टिक पर्सन, विषय है, मेटेरियलिस्टिक पर्सन, their mind automatically absorb with their material things. And as like businessman, day and night, what is thinking? How to get mind profit and loss account, going in this. Because this is in the same way. And Brajavasis, those who are eternal, associated of Krishna, Krishna Nitya Parikar, their mind automatically absorbed with Krishna. So saying this verse, Jaduhane, Abahane, Mathona Pralipa, Pranchai Chanardhu Rudito Chanamarjanado, Gayanti Chaino Unurakta Dhyosrukanto, Dhanna Vrajastriya Rukma Chittaya. So, just I also explained, we are sadhaka. We have to follow the rules. But our aim and object, how to serve to Krishna under guidance of Brajavasi. Brajavasi के अनुगत्य में राधा गोविंद सेवा. We serve to divine couple Radha and Krishna under guidance of Brajavasi. These are in. So one is called Ragatmik Jan, or another is called Raganuga Jan. Rago Anuga, Raganuga. Those who are following the footsteps of Brajavasi and how to attain the highest mood of Braj Gopis. Or Braj Gopis, they are spontaneous love and affection. So for this regard, they are called, what did he say? Ragatmik, Rago Atmika Ragatmik. And Atmik, in their heart, soul, spontaneous, love and affection with Krishna. So now come in this way, the Ekodandi Sampradayas and sannyasis, they followed many rules and regulations. And they also follow, they are following also Chaturmasya Vrat. 4 months, they perform hard austerities. But according to Shastra also explained, after 2 months, they also, what is called? If they are, this also explain this. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he traveled in South India and
especially Lord Chaitanya Mahaprabhu came in Pandharpur. And then someone told to him that his elder brother Viswarup, who took sannyas, and when he came here and he departed from this place and attained to transcendental world. And then Chaitanya Mahaprabhu himself also saved his hair. And that is called Khaura Karya. For this regard, in our Gaudiya Sampradayas, also after 2 months, understand? In Chaturmasya, in Shravan and Bhadra, then Bhadra Purnima, we also, what is called, saving. Then Khaura Karya. So this is called, this Purnima is called also Viswarup Khaura. Then Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in so many commentary explain about Chaitanya Bhagavat Madhyakhanda 19th chapter. And that is called Viswarup Khaura Divas. And this day also, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, that is Vinod Bihari Brahmachari, he took sannyas in Katwa, and Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. And Lord Chaitanya, Vinod Bihari Brahmachari, he took sannyas from Nitya Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And then his name, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And also this day, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, who preached all over the world and established, and what is called Krishna consciousness. And he took sannyas from Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj in Mathura, in our Math. Understand? For this regard, Mathura Math is very famous. I saw most of the ISKCON sannyasi, they used to come, and also a very nice, beautiful festival. Whole day, morning to evening, they also glorified about Bhakti Vedanta Swami Maharaj. So the and especially in Vrindavan, what is the meaning of sannyas? Sannyas meaning is not just give up everything. Sannyas general meaning is what? Renunciation. Sammak rupeno nasanam iti sannyas. And give up all kinds of attachment. That is called sannyas. But sannyas means is what? How to deeply attach with your Ishtadev and give up the material attachment. विषय परित्याग करके अपने इष्टदेव राधा कृष्ण में आसक्ति होना ही संन्यास का है. Though in our Shastra explain in this Kali Yuga, and 5 things are prohibited and prohibited. Okay. And Nishiddha. What is that? Assamedham Gavalambam Paula Paitrikam Devo Reno Sudatpatti and or Sannasam Kalu Pancha Vivarjat. In this Kali Yuga,
And Shastra also explain 4 things are prohibited. And what are the 4 things? Remember? Let's say, Aswamed Yagga, Aswamedham Gabalum. In this Kali Yuga, you cannot perform the fire sacrifice of horse fire sacrifice. That is Aswamed Yagga. First. Second, you cannot do fire sacrifice of cows. That is the Gabalum. Gomed Yagga. And in ancient time or other yugas, they also perform Aswamed Yagga. As Ramchandra, he did also Aswamed Yagga. And Gomed Yagga also. To sacrifice the cows. But that time the Muni rishis with their mantra, powerful mantra, they again also revive their life. And a very nice, healthy body is coming. But Kali Yuga not possible. और युग में जो गोमेद यज्ञ को कहा गया, उस युग में वास्तव में जितने बूढ़े गाय है उसको यज्ञ में फिर मंत्र के द्वारा उसके सुंदर शरीर पुनः शरीर को प्रकट कर देना। कली युग में संभव है, मंत्र के इतने प्रभाव नहीं, और मंत्र इतने प्रभाव दिखाती भी नहीं, थोड़ा बहुत दिखा करके बंद हो जाता है। In this Kali Yuga, mantra is everywhere. The power of mantra is everywhere. But those who are real sadhu, they are not showing the influence of mantra. Why? Because then many people, they also chasing behind them. Riddhi, Siddhi will come. So for this regard, Kali Yuga also, Kali Yuga, no need to fire sacrifice horse or fire sacrifice of cows. So Shastra is Aswamedham Gabalumam, Palaputrikam. And in other yugas, they also what is called Pitri Saddha with the meat and something this. And what is called? And oblation of their forefather with the something this. With the meat. Palaputri. But Kali Yuga, completely forbidden. Aswamedham Gabalum Palaputrikam Devoreno Sutatpatti. Other yugas, when the elder brother left body, then younger brother produced the children. But Kali Yuga, forbidden. So, our fourth, sannyas. Kali Yuga, sannyas also forbidden. But which sannyas? Karma sannyas. Many people also argument, especially Babaji Sampradayas, why Gaudiya Vaishnava Lok, they are taking sannyas. For this regard, Gurudev, he wrote this book. What is the book? Prabandha Panchakam. Very powerful grantha this. And he gave the evidence from all the Shastra. So there are 2 types of the Karma sannyas, and that is called Narottam sannyas. This sannyas, Karma sannyas, that is called forbidden. Or Narottam sannyas, how to completely absorb with divine Radha and Krishna. Devadis. So now coming in this way, 4 types of sannyas is also there. Kutichak, Bahudak, Hangsa and Paramhangsa. Understand? Kutichak means those sannyasis are staying in their ashram, not traveling. They are called Kutichak. One place. They are staying, they are just their ashram. They are called Kutichak. Or Bahudak, those are traveling many places. Bahu Udak. Udak means water.
That means those who are drinking water different places, traveling. If you travel, you have to drink different places water. Australia water, then Australia water, then going to New Zealand water, America water, Brazil water, different. Going or not? And traveling. They are called Bahu Udak Bahudak. Sanskrit word Bahudak. Those sannyasis are traveling different places. They are called Bahudak sannyas. Or Hangsa. Hangsa means as like swan. They give an example. If you give the milk, the swan will drink the milk and separate the water. They get a Hangsa. That means is what? They can discriminate. They completely detach from all the material things. Hangsa. Or Paramhansa. Hangsa then Paramhansa Chudamani. They completely 24 hours they absorb and to meditate to Lord. And first time said divine couple Radha and Krishna. राधा कृष्ण लीला करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, अष्टकाल लीला में बुलाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद परमहंस मुकुटमणि चूड़ामणि. He completely absorbed लीला कथा निषेवन. So now coming in this way, how to absorb in Vrindavan, this thing was. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, Sei base gya koilo nidharan. Are you taking the saffron cloth and going to Vrindavan to absorb pastimes of divine Radha and Krishna? Saffron cloth means anurag. It is the symbol of anurag. ये saffron cloth जो सन्यासी जो पहनते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? राधा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होनी चाहिए. अनुराग समझते हो? डीप अटैचमेंट. अनुराग, they are the two symptoms of अनुराग. रसप्राणु स्नेहानुबंधनम और दर्शने अतृप्तता. Radha and Krishna, there is so much deep attachment to each other. With love and affection, then they attach with them. Completely में bind. एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे बंधी होकर रहते हैं. बंधी समझो तो बाइंड. जैसे विवाह बंधन कहते हैं. विवाह बंधन, प्रेम बंधन. This bandhan शब्द were very important. But this bandhan means binding. But this binding is what very not good words also. Who wants to bind? Krishna, he does not want to bind with the Rupa Mother Jasoda. For this regard, morning to midday, Mother Jasoda could not bind to Krishna. But when Mother Jasoda, so much regardness coming, and so much sweat dropping from his forehead, from her forehead, then Krishna himself binded. Dishtva parisramam kripa Krishna, dishtva parisramam Krishna kripa asit sabandhane. Krishna himself binded. Or another thing, actually Mother Jasoda, she bind to Krishna with her Vatsalya bhava. Who can bind to Krishna? Who has Vatsalya bhava. Who has Sakka bhava. Who has Madhurya bhava. Srimati Radhika, she bind to Krishna with the Madhurya bhava. Srimati Radhika. And this thing. That is called Malla Bandhan. And once Krishna disappeared from Ras dance, when Krishna again appeared,
Then, and all the Sakhis they gave to one garland to Srimati Radhika. Then Srimati Radhika say bind Krishna. So for this regard called satisfied. Eh? Anurag also another symptom of it. Krishna always manifests his ever fresh new form. That is called Nava Navan Man. Eh? Not possible in this material world. Eh? Nava Navan Man. Ever fresh and new. How possible? And in this material world, when we are saying, and he is going, he is going, eh? He gone. Actual not present tense in this material world. Eh? Automatically what? Past. Going. But transcendental world, that is called always. Well, how possible is? Because this is the Achinta Sakti. And always were ever fresh, newly. The Sanskrit word that is called Navo Navayanman. Hey Lolite, I did not meet with Krishna. I did not see the Krishna. How is he? Even when Srimati Radhika heard the name of Krishna, her heart melted. Sahi keva sunailo Samanam.
Vaikuntha, Ajodhya, Dwarka and Mathura keep in one balance. Our whole opulence of Vrindavan keep another balance. And still also Vrindavan opulence visual. Great, higher. But still Brajavasi, they never think Krishna is Bhagavan. सारे वैकुंठ अयोध्या द्वारका के जितने ऐश्वर्य है एक पल्ले पर एक बैलेंस में रखो, और केवल वृंदावन के जो जितने ऑपुलेंस है एक बैलेंस में रखो, है तराजू में रखो। दोनों तराजू के दो पल्ला होता है ना, समझ में आ रहे? एक तराजू में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, अनंत करोड़ क्या वैकुंठ की मथुरा जितने ऑपुलेंस है एक तराजू पर रखो, एक तरफ रखो, और एक तरफ कहां रखो? केवल ब्रज की वृंदावन की जो ऑपुलेंस। तथापि वृंदावन के ऑपुलेंस क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। वृंदावन में इतने ऑपुलेंस है, शिकार नहीं कर रहे हैं। यही तो है ब्रज की महत्व। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी जिसके समझ नहीं पा रहे, बट उनसे टू अदर्स। ब्रह्मा तो देख करके हैरान हो गया, ये कृष्ण स्वयं भगवान है कि नहीं? ये भी उनके क्या हो गया? शंका उत्पन्न हो गया। शंका समझते हो? डाउट। ये कृष्ण ही इज भगवान और नॉट? अरे यू लिसन, डोंट गिव अटेंशन, otherwise just close your eyes. this thing वृंदावन की महिमा में बता रहा हूं। वृंदावनम सुखिवो वितनोति कीर्ति जद देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम प्रच्छादि सन्न वरतान्न समस्त सत्यम। सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के वेणु की महात्मा वर्णन कर रहे हैं, वेणु की महिमा पर वर्णन कर रहे हैं। जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं, वेणु बजाते हैं, मोर मयूरी क्या करते हैं? नीचे उतर करके आ जाता है, पर गिरिराज गोवर्धन के शिखर से नीचे आकर के पंखा फैला करके नृत्य करना शुरू करते हैं। इसलिए वृंदावन सुखिवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम प्रच्छादि सन्न भरतान्न समस्त सत्यम। वृंदावन ऐसे सुंदर सुरम्य रसमय भूमि कहा गया था, लैडन ऑफ रस, फूल ऑफ रस, जहां पर जिसमें किसी प्रकार जो है ऐश्वर्य मिश्रित नहीं है। ऐश्वर्य तो है, ऐश्वर्य में ऑपुलेंस, फुल ऑफ ऑपुलेंस वृंदावन, बट कंप्लीटली कवर्ड विथ माधुर्य। माधुर्य के द्वारा श्रीमंडित है, श्रीमंडित है, कंप्लीटली कवर्ड विथ माधुर्य मंदिर वृंदावन। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तथापि कृष्ण वृंदावन में कैसे लीलादि कर रहे? साधारण एक बालक, गोप बालक के भांति। और ब्रजवासी भी उनकी साधारण एक गोप बालक के रूप में ही दर्शन करे, जिसके साथ जिस प्रकार संबंध है। नंदो यशोदा अपने पुत्र के रूप में लालन पालन कर रहे हैं। सुबल श्रीदाम कैसे दर्शन हो रहे? अपने सखाओं के रूप में दर्शन हो रहे, कांध में चढ़ जाते हैं, अपने उच्छिष्ट भोजन कराते हैं। कौन? सुबल श्रीदाम। और राधादि गोपियां कैसे उल्हाना देते रहते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि वो वृंदावन धाम में इतनी सुंदर स्थान जो है इसे वर्णन करना संभव नहीं, जहां पर मुनि ऋषि लोग पक्षी रूप धारण करके विराजमान होते हैं। पूजा तो कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुले, कुजत कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुले नाना रत्न निबत्त मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावन राधा कृष्ण और निशंक प्रभजतु जीवार्थ दो मुदा।
वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को, जहां पर सुंदर रत्न वेदी आदि स्थापित हुआ है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की ऐश्वर्य जहां पर है, तथापि साधारण रूप में दिखाई पड़ रहे, जो पुरुषार्थ के देने वाले, परम पुरुषार्थ के देने वाले वृंदावन धाम है। ये कुजत कोकिल हंस सार से गणाकर्ण मयूरा कुलई, जहां पर कोयल कुहू कुहू करके रब करते रहते हैं, कुजत कोकिल हंस है, कुजत कोकिल हंस। यहां तक भी कोयल क्या है, वो कोयल कोई नहीं है, साक्षात जो है मानो ऋषि मुनि लोग वृंदावन में पक्षी रूप धारण करके गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करने के लिए विराजमान हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें, प्रायो वतम्ब मोनयो विहगा वने अस्मिन् कृष्णे क्षित तदुदितं कलभेनु गीतम आरुज्य द्रुम भुजान रुचिर प्रबालम शृण्वन्ति मिलित दृशो विगतान्न वाच, शृण्वन्ति मिलित दृशो विगतान्न वाच। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, कृष्ण जब वेणुवादन करते हुए वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, अर्थात गोचारण करते करते सखियों के साथ खेलकूद करते करते जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और कृष्ण के इतने सुंदर रूप दर्शन करने के लिए, केवल बराह पीड़ो नटवर रूप, इतने सुंदर रूप दर्शन करने के लिए कहते क्या, बड़े बड़े मुनि लोग, मुनि लोग विहगा पक्षी के रूप धारण करके पेड़ के ऊंची शाखाएं पर बैठ जाते हैं। क्यों? गोविंद दर्शन के लिए। समझ में आ रहे? गोविंद दर्शन के लिए पेड़ों की, वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं, जैसे दूर तक कृष्ण के गोविंद के दर्शन हो। इसके प्रायो बताम्ब, यहां पर करें एक सखी दूसरे सखी के कार्य रही है। भाव कौन सा है? एक सखी दूसरे सखी के कार्य है। देखो हमारे गोविंद की दर्शन के लिए बड़े बड़े मुनि लोग पक्षी के रूप धारण करके और पेड़ के ऊपर बढ़ जाते हैं। इसलिए यहां पर शब्द आ रहे हैं प्रायो बत अम्ब, अम्ब बने मां शब्द हो जाता है। ये संस्कृत में ये रसाभास दोष हो जाता है। कोई सखी दूसरे सखी को मां कह करके संबोधन नहीं करते है आज में, क्योंकि मां शब्द होता है वत्सल भाव से, और सखी शब्द होना चाहिए था, किंतु वहां पर भाव में इतने अभिष्ट हो गए, अत्यंत उत्कंठा होने के नाते ये अम्ब शब्द उनके मुंह से निकल करता है। बंगाल में सभी को मां बोलते हैं, समझ में आता है? बंगाल में आप जाइए, अपने बेटी के भी क्या बोलते हैं? मां करके पुकारते हैं। अपने माँ की भी माँ बोलते हैं, बेटी की भी माँ बोलते हैं, सबकी माँ शब्द आ शब्द है। देखो यहाँ पर जो कार्य रसाभास दोष के कार्य बोले, वो समस्त सखियां जो है इतने विस्मय अभिष्ट हो गया, कंप्लीटली फुल ऑफ क्या बोलते हैं एस्टोनिशमेंट, इतने अभिष्ट हो गए, इसलिए अम्ब शब्द करके पुकारने है। जैसे हम कोई अकस्मात कोई वस्तु देखे, उसमें दो वस्तु आ जाता है, एक विस्मय आ जाता है, आश्चर्य हो जाता है, और आनंद होता है, दो शब्द में आ जाता है, एक आनंद में और एक विस्मय में। क्या बोला? आनंद, इतनी हृदय में उच्छ्वास होता है, आनंद होता है, सो मच एस्टोनिशमेंट आ जाता है, तो उसमें ये शब्द निकाल करके आ जाता है। इसलिए प्रायो बताम्ब मुनयो विहगा बने उसमें, ये वृंदावन देखो कैसे सुंदर है, हमारी गोविंद के लीला ललाम भूमि वृंदावन है। कृष्ण के इतने सुंदर रूप दर्शन करने के लिए देखो बड़े बड़े मुनयों, बड़े बड़े मुनि लोग पक्षी के रूप धारण करके और पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं गोविंद दर्शन के लिए। और उस समय पक्षियां क्या करती है? और
वो पत्ता खाना बंद कर देते, फल आदि खाना बंद कर देते हैं, किच 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 करते हैं ना। बोले गोविंद जब वंशी ध्वनि करते हैं, उस वंशी ध्वनि के साथ ही साथ वो भी ध्वनि करना शुरू कर देते हैं। किंतु जब कृष्ण वह वंशी ध्वनि के और उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, तो अब उस समय पक्षी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। स्वर के 3 प्रकार आलाप होता है, क्या क्या, उदात्त, अनुदात्त और सरित। इस स्वर के 3 प्रकार आलाप होता है, अनेक प्रकार आलाप, जस 3 प्रकार के रिदम होता है, विशेषकर उदात्त, अनुदात्त और सरित। कृष्ण जब पंचम सुर से कीर्तन करते हैं, बंसी बजाते हैं, 5 नोट्स है, उस पक्षी भी उनके साथ ही साथ कीर्तन करना शुरू। जैसे कोई बेस्ट कीर्तनिया है, जब साधारण स्वर से कीर्तन कर, सभी कीर्तन कर सकते हैं, है कि नहीं, किंतु वो कीर्तन की जब और आलाप करते हैं, आलाप समझते हो, बढ़ाते रहते हैं, तो अब उससे एक साथ में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं सा रे गामा पादा नी सदा, और जो एक ही स्वर के जो वो ले लेते हैं, ऊंचा स्वर से ले लेते हैं, सबके लिए संभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब पंचम स्वर से वेणु बजाते हैं, तो पक्षी भी कृष्ण के साथ ही साथ है वो स्वरलाप करते हैं, रिदम करते हैं। और कृष्ण पंचम स्वर से सप्तम स्वर से जब छोड़ देते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, स्थिर हो जाते हैं, बोले सुनते रहते हैं, इतने सुंदर यही तो कार्य है। इसलिए कहते हैं मुनायो, इसलिए कहते हैं उस मत पक्षी करते हैं आंख बंद करके गोविंद के ध्यान करना शुरू कर देते हैं। कितना सुंदर गोविंद के ध्यान, समाधिस्थ होकर, जैसे मुनि ऋषि लोग संत महात्मा समाधिस्थ होकर के चिंतन आदि करते रहते, उसी प्रकार ये समस्त मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, मानो साक्षात व्यास पराशर है, बड़े बड़े ऋषि लोग, वृंदावन नारद आदि बड़े बड़े ऋषि लोग वृंदावन में मानो यही पक्षी रूप धारण करके गोविंद के वेणुध्वनि श्रवण कर, गोविंद के वेणुध्वनि में इतने सुंदर स्वरालाप होता है। इसलिए करे प्रायो बताम्बो मुनयो वियोगा वनेस्मिन् कृष्ण इक्षितो तदितम कलवेणु गीतम आरुज्यते द्रुम भुजानो रुचिर प्रबालन शृण्वन्ते मिलित दृशो विगत अन्नवाच है। और कोई कथा उनके कान में प्रवेश नहीं करता है। स्मरण के 5 दशाएं होती है, कितने दशा होता है, स्मरण के 5 दशा होता है, और उसमें अंतिम क्या होता है, समाधिस्थ हो जाता है, सम्यक रूप में धी, स्मरण, धारणा, ध्यान, धारणा, स्मृति एंड देन समाधि। समाधि दशा में क्या, सम्यक रूप में धी, चित्त मन के अपने इष्ट देव में लगे थे, और उसमें अष्टकाल लीला में चलते, अपने में उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, अपने स्वरूप ज्ञान करके रियलाइज हिज ओन ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, सिद्ध देव के द्वारा साक्षात रूप में जुगल की सेवा में लग जाते हैं। इसी कहते हैं समाधि दशा। सम्यक धी माने अपने अंतर दशा में चले जाते हैं। 2 प्रकार की दशा होता है, फिर एक होता है बहिर्दशा और एक होता है अंतरदशा। महापुरुष के लिए भी कहा गया, महापुरुष के 3 दशा बताया, एक बहिर्दशा, एक अर्धवाज्य दशा, एक अंतरदशा। वाज्य दशा, अर्धवाज्य दशा और अंतरदशा। वाज्य दशा थे प्रभु करे भक्त संगे नाम संकीर्तन, जब चैतन्य महाप्रभु staying with his devotee and external consciousness, then he is doing nam sankirtan, that is called vajja dasha. Vajja dasha means external consciousness. Vajja dasha bhakta sange kare nam sankirtan, and he asks the devotees, how are you, have you, many things. Or ardha vajja dasha, completely absorbed, and
and it's something he remembering and asks to his devotee. As like Lord Chaitanya Mahaprabhu told, आज मैं राधा कुंड में चले गए, महाप्रभु का स्वरूप दामोदर, आज मैं राधा कुंड में चले गए, और राधा कुंड में जाकर के कुंड के तट पर बैठ करके मैंने देखा ये कृष्ण कैसे सखियों के साथ जल विहार आदि कर रहे, तेरे तकी बसी हमें देखी कृष्ण जल विहार. Mahaprabhu himself told, today I went Radha Kunda and I was sitting on the bank of Radha Kunda and Krishna performed sweet water sporting lila in Radha Kunda and with the gopis. कृष्ण कैसे राधा गोपियों के साथ कैसे जल विहार आदि करते हैं. अर्धवाज्य दशा में सामान्य कुछ बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, और अंतर्दशा कंप्लीटली वर्ड, he did not speak anything. So अंतर्दशा. So there are three types of stages of Lord Chaitanya Mahaprabhu: Vajja Dasha, Ardhavajja Dasha, and Antardasha. Samadhi Dasha this way. Or he is absorbed in there. So he are saying this. बड़े बड़े ऋषि लोग वो कि साधारण पुरुष नहीं है. ये वृक्ष आदि हम देखते हैं, पेड़ आदि देखते हैं. ये वृंदावन के पेड़ कौन सा है? बड़े बड़े ऋषि लोग भी वृंदावन में पेड़ के रूप में विराजमान है. आप जाइए मानसरोवर, एट द टाइम ऑफ कृष्ण सेम ट्रीज आर देयर. आज से 5000 साल पहले कृष्ण वृंदावन में जो लीला किया, मानसरोवर, आप अभी तक देखिए वहीं पर जो पेड़ है बिल्कुल ऐसे लेटे हुए है, लेटे जाते completely lying down and crying Radha Krishna this lila, remembering Radha Krishna. Who are they? They are Muni Rishis, Siddha Mahatma. They are hankering how to receive on the dust, a food dust of Srimati Radhika. Because in Vrindavan, that lila is going on. And still lila is going on this way. If you go Vrindavan, Seva Kunja, Nidhuva, Nikunjava, and even at night time, no one can stay in that place. And even Pujari, no one can stay. And even the monkeys cannot stay there. And there are many evidences. Radha Krishna Nitya Lila Bhumi. Nitya Lila Lalam Bhumi Vrindavan. What will say these things out? Their body turns into body also. All the Jatkinchit Tenugulum Kikatumukam Gusti Samasing Sarvananda Mukunda Daitam Lilanukulam Param. Shastri was put in the Nishchantam Jancha, Brahma Divi Saspiran Madhyamta Vandate. Vrindavan. Jatkinchit Tenugulma Kikatumukam Gusti Samasing Tat in Vrindavan. All they are also, all they are helping Radha Krishna's sweet lila, how they meet each other. वृंदावन में कोई प्रतिकूल वस्तु, form of snake. And when Radha Krishna they did man, Srimati Radhika did man, and how to break the man of Srimati Radhika. One Srimati Radhika, she did man, anger with Krishna. Then she left to Krishna. And then Krishna played the flute. For Srimati Radhika, she put some cotton in her ears. Because she is thinking, I will not listen the sound of the flute of Krishna. Because Govinda Benudhana is powerful. And that is called as like Brahmastra. You understand? Very powerful and weapon of Govinda. That is called Benu. Nisamma Gitam Tadananga Bardhan. When Krishna played the flute, all the gopis they ran towards Krishna. And now Srimati Radhika is thinking, I will not listen the sound of the flute of Krishna. Krishna Benudhani सुनेंगे नहीं. यदि नहीं सुना तो जाएंगे कहाँ? हमारे कथा नहीं सुना तो आपको अनुष्ठ तो जाएंगे नहीं. सीधी बात है. शब्द ब्रह्म कान में प्रवेश करें तब तो होगा. Understand? So in the same way, Srimati Radhika, she also blocked her ears with the cotton. Can't be.
वेणुध्वनि जाएगा नहीं। तो नाउ कृष्ण फ्रूट फेल्ड। कृष्ण जो वंशीध्वनि के है काम नहीं कर रहे हैं। सो हाउ श्रीमती राधिका again met with Krishna? Then Krishna is thinking what to do, what to do now. Then Krishna, he remembered to Yogamaya. Yogamayam pasritam. योगमाया के स्मरण करने लगे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की अंतिम जो लीला जो कुछ भी होता है सब योगमाया के द्वारा ही होता है। Then योगमाया she manifest in the form of snake. श्रीमती राधिका सी इज गोइंग, राधा जी चलने लगी। और ब्रज की रास्ता होता है ना बहुत, क्या बोलते हैं, पगदंडी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, नैरो लेन है, केवल एक ही व्यक्ति जा सकते हैं। अभी हम ब्रज दर्शन नहीं किया, हम तो माया दर्शन करते हैं, ब्रज दर्शन अभी नहीं हुआ है। ब्रज में आप कहाँ दिखाई पड़ेगा आप, है बात ये सही है कि नहीं है। अब तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया, वो हो गया कहाँ। वृंदावन दर्शन करने के लिए बोले एक साधु मुख से दर्शन होता है, हरि कथा के दर्शन, वृंदावन दर्शन होता है। तो श्रीमती राधिका सी जस्ट लेफ्ट टू कृष्ण एंड प्रोसीड टू जावट, बट द पैथ इज वेरी नैरो एंड टू साइड what is called thorns, cannot go this way, nor can to go to left side or right side, or in front of the snake raise his horns. Yes. Srimati Radhika, she can't to go in front, and then she cannot go left side, right side. Then Srimati Radhika said, Krishna, Krishna, Mahabahu, hey Krishna, please save me. And Srimati Radhika came and embraced to Krishna. Then her man automatically what? Broken. In this way. So Jatkinchit Tinaguluma Kikato Mukam Goshte Samasitat Sarvananda Mukunda Daitan Lilanukulam Param Shastri once put into instinctum Jacha Brahma Devi Saspiram Madhyanta Bandate. What will say even Brahma, Shiva, Narad, all their high class exalted devotees. जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य रालकित नवसा पुरुषोत्तम सद्यो वसुन चूर्ण अनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद, he recited by Brahma, Shiva, Narada, all their high class exalted Vaishnavas, encouraging how to receive the one the sprinkle particle dust of foot dust of Srimati Radhika. राधे के सामान्य एक चरण कमल की धूल प्राप्ति करने के लिए कितने तपस्या कर रहे हैं। राधा जी की धूल मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। जैसे लीला कथा सुनाते हो ना, एक समय राधा कृष्ण जो है लीला के पश्चात जो अर्थात रासलीला के पश्चात जो है क्या बोले सेवा कुंज में रासलीला चल रही थी। हर रोज नित्य रास होते ना, पर क्या रास होती है, नित्य रास। रास होने के रात समाप्त हो गए, आधी रात हो गया, रात करीब 1-1:30 बज गया, समझ में आ रहे, 1-1:30 बज गया और रात समाप्त हो गया और सारे सखियों के साथ राधा जी चलने लगे और कुछ समय तक कृष्ण भी राधा जी के साथ चलने लगे, जमुना के किनारे किनारे में चल। तो राधा के चरण में जमुना के जो बालू है ना, रेत जो है, उनके बालू लगे। कृष्ण कहने लगे राधे तुम्हारे चरण धूल को मैं साफ कर देता हूं। राधा जी करने लगे नहीं, बार बार कृष्ण बोले नहीं, तुम्हारे चरण में जो रेत लग गया रेत जो लग गया, बालू लग गया, उसको मैं साफ कर देता। देखो बार बार कहने बोले, राधा जी माना करने नहीं, कृष्ण नहीं। तो अंत में कृष्ण कहने लगे राधे तुम माना क्यों करते हो, तुम्हारे चरण में इतने धूल लग गया मैं सब कर देता हूं। अब अपने पीताम्बर के द्वारा, कृष्ण ने कहा कि अपने पीताम्बर के द्वारा
यू हैव टू क्लीन योर फेस। किंतु राधा जी ने करने नहीं। कृष्ण बार बार पूछ रहे क्यों, माना क्यों करते हो? देखो राधा जी ने कितने सुंदर उत्तर दिया है। राधा जी कहने लगे देखो मेरे चरण के एक बार कोई आश्रय कर लेते हैं है? उनको मैं अपने चरण से उसके कभी है? अच्छा, इसलिए कीर्तन करें, मिट जाए तेरा चरण की धूली, क्या बोलते हैं कीर्तन में है ना वो, ये राधा जी के चरण की धूल हमें मिल जाए है? राधा जी इतने करुणामय है। अर्थात कोई एक बार कोई जीव राधा जी की चरण का आश्रय कर ले, राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय, जो राधा जी के चरण के बार आश्रय कर लेते हैं, राधा जी उसको कभी त्याग नहीं देते। इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर कीर्तन गए, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे भावी गिरिधारी, राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मोहि जाओ बोलिहारी। राधा जी के चरण आश्रय इतने सहज नहीं होते। संसार के लोग कितने देव देवी के आश्रय कर लेते हैं, और वो देव देवियां सब अंतकाल में छोड़ करके चले जाते हैं। जितने भी देव देवी आप आश्रय करो है, वो सब क्या होगा, सब आपको छोड़ करके चली जाए। वो काली कहे, शिव कहे, दुर्गा कहे, जितने लोग, जितने देव देवी के लोग पूजा आदि करते हैं, गणेश जो है जितने की पूजा करो, काल गणेश चौथ था ना, वो गणेश चतुर्दशी है, वो गणेश भी छूट कर भाग जाए। किंतु राधा जी के चरण को एक बार आश्रय कर ले, यही तो बता रहे, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाऊं बलिहारी। राधा जी के चरण आश्रय, इसलिए राधा जी कह रहे हैं ये कृष्ण ये गोविंद मेरे चरण को जो धूल आश्रय कर ले मानो है, ये धूल को मैं कैसे छोड़ दूं? कितने करुणा, इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा है। इसमें होता है क्या, आत्मसमर्पण। यहां पर कहते हैं आत्मसमर्पण, कंप्लीटली सरेंडर है। जो एक बार राधा जी के चरण में आत्मसमर्पण हो जाता है, याद रखना क्या बोला, और कुछ नहीं है। भजन राज्य में जो कुछ भी हम बताते जा रहे हैं, इसके अनुभूति क्या होता है, आत्मसमर्पण। इसलिए गीता में तो भगवान कर सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मां। तात्पर्य क्या बताए, आत्मसमर्पण हो जाएगा, अपने को समर्पित कर देना, ये इतने सहज नहीं होता है। ये आत्मसमर्पण कृष्ण, कृष्ण देखो राधा कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, और कृष्ण राधा के नहीं छोड़ते हैं। क्यों ना, कृष्ण अपने को क्या के राधा के चरण में स्थापित, आत्मसमर्पित कर है। यही तो दिखा रहे कृष्ण। कृष्ण जो गीता में जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मां। यहाँ पर आत्मसमर्पण की जो बात जो करे, वास्तव रूप में कृष्ण वही वृंदावन की लीला को स्मरण करके ही बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में। ऊपर से दिखा रहे साधारण लोगों के लिए, किंतु वास्तव रूप में कई कृष्ण भजनंदन कृष्ण किस प्रकार अपने को राधा जी के चरण में आत्मसमर्पण किया। क्योंकि अपने आचरण नहीं करते दूसरे की शिक्षा क्या देंगे, अपनी आचरी जीवन शिक्षा। कृष्ण स्वयं जो गीता में जो वचन दिया व जो बता रहे हैं वो अपने स्वयं जीवन में आचरण कर, वृंदावन के सारे आचरण करके तब तो कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं। ये देखो मैं किस प्रकार राधा के चरण में अपने को समर्पित किया। भगवत वाक्य कोई टीकाकार ऐसे बता रहे, ये और कुछ नहीं है। भगवत भक्ति राज्य में जो कुछ भी हम बोलते जाए सबसे बड़ी चीज है क्या, आत्मसमर्पण, सरेंडर वर्ष। प्रेम राज्य में वही तो दिखाते हैं और कुछ नहीं। राधा जी कृष्ण छोड़कर
राधा नहीं है, राधा छोड़ करके कृष्ण नहीं। कृष्ण राधा जी भी कृष्ण में समर्पित थे और कृष्ण राधा जी में है। प्रिया प्रिया के इतने प्रेम तो उसी से ही होता है ना, आत्मसमर्पण से प्रेम हो जाता है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहे हैं? आत्मसमर्पण जहां पर हो जाता है वहीं से प्रेम शुरू हो जाता है और वो प्रेम अंतिम काल तक रहता है, वो आत्मसमर्पण हो जाता है। जिससे हमारे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में क्या बता रहे? आश्रिष्ट व पादरतां पिनुष्टुमा मत दर्शन मत करोतु वा विदधातु यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणो नाथस्तु स्वैव न पर। आत्मसमर्पण इतने दिखा रहे हैं, कितने सुंदर प्रेम है। अंतिम श्लोक में शिक्षाष्टक की 8th भाष अंतिम श्लोक कह रहे हैं, कितना सुंदर है। क्या श्लोक बताया? आश्लिष्य व पादरता, मुझे वो अपने चरण की धूल बना ले अथवा मुझे क्या करे, पैर के द्वारा मुझे रेंद भी दे, पिस दे। तथापि प्राण, कृष्ण हमारे क्या प्राणनाथ है। आश्लिष्य व पादरता पिनष्टुमा, पिनष्ट समझे पहले चरण के द्वारा मुझे रेंद भी दे। रेंद समझते है कंप्लीट लेवल, क्या बोले, पिस दे है। आश्रिष्य व पादरता पिनष्टुमा मत अदर्शनात् करोतु वा, मुझे भी दर्शन दे अथवा नहीं दे, है। यथा तथा विदधातु लंपटो, उनके लिए क्या बोल रहे, वो भी लंपट भी हो, है, तथा भी मेरा प्राणनाथ है। जे सखरिय ना पाइया कृष्ण हन दुखी हुआ, श्रीमती राधिका करी, जिस सखी की प्राप्ति नहीं पा करके कृष्ण दुखित हो जाते हैं। और श्रीमती राधिका कह रही है, मैं उस सखी के घर में जाकर के कहूंगी, ये देखो कृष्ण तुम्हारे साथ मिलना चाहते है। वो कहेगी नहीं नहीं, हमारे तो घर में बहुत काम करना है। कहते हैं मैं उनके घर में झाड़ू लगाऊंगी। कौन बोल रही है? राधा जी का। जे सुखरे ना पाइया कृष्ण हन दुखी हुए, मुई तर पाए पड़ू। राधा जी कह रही है, कृष्ण सुख के लिए वो सखी के घर में मैं जाऊंगी, है, और उनके घर में मैं झाड़ू लगाऊंगी। बोले जाओ कृष्ण से मिलो। कृष्ण के सुख, कृष्ण सुख के लिए इतना आत्मसमर्पण है, इस संसार में तो कोई उदाहरण ही नहीं है। जे सुख रे ना पाइया कृष्ण हन दुखी हुई, देखो आत्मसमर्पण। कृष्ण सुख के लिए श्रीमती राधिका सब कुछ करने के लिए तैयार है। भैया आता है जो मई आता है, जो भैया आता है जो गोविंद कभी नहीं होता है, ब्रजवासी लोग आते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है, कृष्ण के सुख के लिए। लक्ष्मी देवी के संभव नहीं हुआ है। कृष्ण ने इतना ही कहा, ये लक्ष्मी देवी जी रास में प्रवेश करना चाहते हो तो अपने ब्राह्मण अभिमान के त्याग दो, है वो संभव नहीं है। अपने अभिमान ब्राह्मणी है, मैं नारायण की पत्नी हूं, अभिमान त्याग दो। कृष्ण की एक निष्ठा क्या है? कृष्ण का एक गोप, आमी गोप जाति को विभिन्न अन्य नाकरे अधिक अंगीकार। कृष्ण भी एक निष्ठा है। कृष्ण कहते हैं मैं गोप जाति हूं, गोपी छोड़ करके इसको मैं शिकार नहीं करता है। लक्ष्मी की शिकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक भी जागिक पत्नी का पत्नियां जो है, ब्राह्मण की पत्नियां जो है, ब्राह्मणी आगे थे, है। कृष्ण उनके समझा बुझा करके सबको घर भेज दिया, विद्या की नहीं है। किंतु गोपियों की क्या की? कृष्ण तो पैसे पैसे लुभाने लगे, माने बहुत सुंदर सुंदर मीठी हुई बात करने लगे, उपदेश भी देने लगे, किंतु गोपियां लौट करके नहीं है। इसलिए कहते
यही दिखा है। कृष्ण शुक्र कृष्ण कहे आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य नागरे अंगीकार है। कृष्ण में ये विषय बुझे। तात्पर्य क्या है? यदि किसी के रास में प्रवेश करना है तो अति अवश्य ही गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा है। गोपी गृह जब तक जन्म नहीं हो रहा है तब तक आप राष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकते है। यही तो एक विचित्र बात है। कृष्ण में ये दिखा रहे। कृष्ण कहे यहां तो ये हजारों साल तक मुनि ऋषि लोग दंडकारण्य में यही गोपाल मंत्र जप किया। रामचंद्र के देख करके कृष्ण उद्दीपना हुई, किंतु रामचंद्र बोले इस लीला में आप लोग किसी कार्य नहीं करते। पद्म पुराण में वर्णन हो रहा है। ये इस समय रामचंद्र बोले इस समय मैं एक पत्नी व्रतधारी सीता छोड़कर किसी के शिकार नहीं करते। और स्वयं भगवान रामचंद्र मुनि ऋषि के बोले जाओ कृष्ण लीला में आप लोग मैं ग्रहण करूं है? और देखो हजारों साल तक अपेक्षा करने लगे। वो ऋषि मुनि सब ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया है। एक गोपाल मंत्र की साधारण मंत्र नहीं है, कौन कौन गोपाल मंत्र जप करते हो? एक गोपाल मंत्र की साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र के कहा जाता है मंत्रराज। समस्त मंत्रों की राजा कहते मंत्रराज है। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। हम समझ नहीं पाते, कभी जप करते हैं कभी नहीं जप करते हैं, किंतु मंत्र में शक्ति है। अपने स्वरूप का ज्ञान करा देंगे। मंत्र में अलौकिक क्षमता है, ट्रांसेंडेंटल पावर है। इस मंत्र के ठीक से जप करो, देखो आपको स्वरूप ज्ञान हो जाए। अब है कौन है? ये शरीर तो स्थूल शरीर है, ग्रस बॉडी। ये पुरुष का है स्त्री का है, ये तो स्थूल शरीर कहा जाता है, ग्रस बॉडी। इसके अंदर में और एक शरीर है, उसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर है, सेल्फ बॉडी। और इसके अंदर में आत्म शरीर है। जब तक वो आत्म शरीर को ज्ञान नहीं हो रहा है तो अभी संसार में जीव विचरण कर घूमते रहते हैं। ऐसे घूमते घूमते जब वो सिद्ध शुद्ध संत महात्मा के संग हो जाता है और उनकी कृपा से ही तब होता है। रहुगुण तत्वसा न जाचे न चेज्या निर्वापना गृहदवा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य बिना महतो पदरजो अभिषेक। महतो की चरण कमल की धूल के द्वारा रज के द्वारा जब अभिषेक नहीं हो रहा है तो स्वरूप ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं महतो पदरजो अभिषेक। उनकी चरण कमल की रज के द्वारा हम अभिषेक, ठाकुर जी को अभिषेक कराते हैं ना, किससे अभिषेक कराया है? दूध दही पूरा उसको क्या करते हैं? स्नान कराते हैं। तो उसी प्रकार महतो के चरण रज के द्वारा अभिषिक्त हो जाए। महतो के चरण रज क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त शेष, तीन साधन है। अच्छी तरह से सुनिए इसको। जबरदस्ती करके चरण धो करके पीने से थोड़ी होता है। वो कृपा करके जब हमें देंगे तब होगा, वो तो सहज में थोड़ी दे देंगे। अधिकार जब तक नहीं वो देंगे नहीं, और जबरदस्ती लो तो काम भी नहीं करेगा। इसलिए अधिकार भी लेना पड़ता है, एकांत की निष्ठा हो जाए। जैसे नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास तुलसी के सिर पर अपने आप चरण स्थापित कर दिए कि नहीं? देखो भक्त पद धूलि, भक्त के धूलि क्या है? उनकी अनुगमन करना है। भक्त पद धूत जल, द फूड बेदिंग वाटर ऑफ डिवोटी। वो क्या है? बोले उनकी हरि कथा श्रवण। वो देखते हैं जो कौन हमारी हरि कथा में कितने रुचि रखते हैं।
कथा श्रवण नहीं हो रहा वो आपको मिलेगा नहीं है। इसलिए भक्तपद धूलि और भक्तपद जल और भक्त भुक्त शेष, उनकी भाव को प्राप्ति करना। तीन वस्तु, उनकी अनुगत्य धूलि हो गया, और उनकी चरण धूत जल, उनकी हरि कथा, और तीसरी भाव है, भाव को ग्रहण कर ले है। आज इसलिए कहते महतोपदरजो अभिषेक, महत्व के चरण में वो अंतर्हित भाव से आएगा आपको। महत्व के संग करते करते हरि कथा श्रवण, जो जितने परिमाण हरि कथा श्रवण करेंगे उतने परिमाण चित्त विकास होते रहेगा। चित्त विकास समझ, टू मैनिफेस्ट योर ट्रांससेंडेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म, धीरे धीरे विकसित होगा। जैसे बीज में पानी डालने पर जैसे धीरे धीरे उसको अंकुर होता है, अंकुर समझते हो, स्प्राउट है, ठीक उसी प्रकार महत्व की कृपा से धीरे धीरे साधक के हृदय में जो अंकुर जो है, प्रेम जो अंकुर है, वो धीरे धीरे विकसित हो। यही एक ही निर्भर करते हैं आत्मसमर्पण है। अच्छा, जब तक आत्मसमर्पण नहीं हो रहा है तो प्रकाशित नहीं होगा। आत्मसमर्पण तार मध्य आत्मसमर्पण अकिंचन, न किंचन में अकिंचन, न किंचन में उनके छोड़ करके हम और कुछ नहीं चाहिए, उनके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। न किंचनम इति अकिंचन, जिससे हमें वस्तु की प्राप्ति करना है उनके छोड़ करके और मुझे कुछ नहीं चाहिए है, ये भावना हो जाए। इसलिए सबसे पहले कहते हैं आत्मसमर्पण। जो जितने परिमाण आत्मसमर्पण हो जाता है वो भाव उतनी है। स्वयं कृष्ण राधा जी के चरण में आत्मसमर्पण किया कि नहीं है? नाग्र कर रहे है, जत किंग्रिसु बहुसो खोलू काकु वाणी नित्यं परसो पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्कल कुंजे भवनांगन मार्जनीशम। ये सब भाव दिखा रहे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कितने सुंदर ये समस्त भाव दिखा रहे। वृंदावन कोई साधारण वस्तु नहीं है। वृंदावन में रहना भी इतने सहज नहीं है। कहते हो वृंदावन में बहुत लोग रहते हैं, पहले वास्तव रूप में वृंदावन जो दिव्य प्राकृतिक वृंदावन, दिव्य दविंदारण कर्पदमाग्र, जो दिव्य जो वृंदावन धाम है उसके ऊपर क्या है? एक माया के जाल बिछा हुआ है, माया की जाल बिछा हुआ है। उसके माया जाल को हमको क्या हटाना पड़ेगा है? जब तक माया जाल के हम हटा नहीं पा रहे हैं तब वो दिव्य अलौकिक वृंदावन का हम देख नहीं पाए। इसे कृपा करिए माया जाल उठाए जखन आंखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। ये वास्तव भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से वो माया जाल जब हट जाए तब हम देखेंगे वो वृंदावन कैसे है। भूमि चिंतामणि गणमें अमृतं कथा गानम नट्टं गोविंदं वंशी प्रिय, इस चिदानंदमय भूमि के दर्शन हो। इसलिए भजन साधना में चाहिए एकांत की निष्ठा है। आज जब तक नहीं हो रहा तब तक नहीं हो रहा है। यही तो हम बताते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एकांतिक रूप में राधा के चरण में समर्पण हो जाए। अनारद्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्तान कुत स्वयं सिंधु रससावगा। यदि श्रृंगार रस में किसी को प्रवेश करना है तो 3 नियम के पालन करना पड़ेगा। राधा जी के चरण में एकांति की निष्ठा, दूसरी वृंदावन में वास, और तीसरी रसिक जनों के संग से हरि कथा श्रवण। और कुछ करना नहीं। वृंदावन में डोलो, राधे 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 बोलो, वृंदावन में डोलो, बस। और क्या करना है?
राधे 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 राधे, और कुछ करना है? और क्या करोगे वृंदावन में? है वृंदावन में जो राधे राधे कहेंगे, वृंदावन में बस। कौन जाना चाहते हैं वृंदावन? कोई जाएंगे? हाथ उठा दीजिए, दो हाथ उठाइए, एक हाथ से कम नहीं चले हैं। कोई गो वृंदावन कि सब एक हाथ उठाया और एक हाथ से उठाई। चलो अच्छी बात है, वृंदावन आप सब है। आज केवल एक बार इतना ही चिंता कर लीजिए, है ये मैं राधा जी की दासी बनना चाहते हैं, है राधिका दासी यदि हो अभिमान, केवल अभिमान को लेगो, शीघ्र मिले तो वे गोकुल है। देखो कितना सुंदर है। और उससे भी हमारी ललिता देवी और भी उदार चित्त है। जंग काम भी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। ये ब्रज में कोई भी व्यक्ति एक बार इतना ही चिंतन करिए, मैं राधा रानी की दासी बनना चाहती हूँ। उस समय ललिता देवी उसके पकड़ के राधा जी के चरण में सेवा में लगा दी थी। कितना सुंदर भाव है। वृंदावन ऐसे कोई साधन नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं। इसलिए मुनि ऋषि लोग यद्यपि कह रहे हैं वृंदावन की धूली प्राप्ति करना इतने कठिन है। ब्रह्मा जी तो प्रार्थना करते करते हार गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृंदावन में तो मेरा संभव नहीं है, जद गोकुल भी कतुमा अंग्री रजो की। बोले वृंदावन में तो मेरा जन्म होना संभव नहीं है। बोले कृष्ण की बाल लीला की स्थान नंद गोकुल में, कहाँ पर गोकुल जाते हैं ना, नंद गोकुल, जहाँ पर बोले वहीं पर ब्रजवासी के घर में एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए। क्या जन्म? पत्थर, स्टोन। और जिससे जो ब्रजवासी में जो सबसे जो निम्न लोग जो होता है, दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू लगाते रहते, पैखाना आदि टॉयलेट साफ करते हैं, और टॉयलेट साफ करके जब अपने घर में आकर के वो पत्थर के द्वारा अपने पैर को रगड़ते हैं, पैर में धूल लगते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं, एक पत्थर के जो है वो रगड़ते घिसते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो पत्थरों के मेरा जन्म हो जाए। और क्या, हम तो साथ कितने कह रहे हैं, ठीक है। जद गोकुलो भी कतोमा अंग्री रजो अभिषेकम, वृंदावन की ऐसे ब्रह्मा जी कहते मेरा तो वृंदावन में जन्म होना संभव नहीं। कहाँ जन्म के लिए करे? क्यों ब्रह्मा जी कर रहे हैं? एक्चुअली ब्रह्मा जी के हृदय में जो एक तो ब्रह्मा जी के कहा जाता है आधिकारिक दास्य भी कहा जाता है। दूसरी है ब्रह्मा जी के जन्म कहाँ से हुआ? भगवान की, नारायण की नाभि कमल से उत्पत्ति है ना ब्रह्मा जी है। इसलिए उनको वो भी अपने अधिकार के देख रहे हैं। ये ऐसे श्रृंगार रस में प्रवेश करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी दैन्य करके कह रहे हैं कतोबा अंग्री रजो अभिषेकम, जद गोकुलो भी कतोबा अंग्री रजो अभिषेकम। वृंदावन में तो संभव नहीं। उद्धव तो इतना ही कहा, ये मेरा वृंदावन में एक तीन लता होकर जन्म है, घास होकर जन्म है। असाम हो चरण जिसाम हो साम वृंदावने क्यों गुलम लतो सीधना जा दुस्तज सजन आर्य पथन हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विवृद्धम। श्रुतियां जिस रास्ते को खोज रहे हैं, बोले उस वृंदावन में एक लता होकर के मेरा जन्म हो जाए, एक तृण कणा हो गया घास होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरे जन्म सार्थक हो जाए। इसलिए असामो चरणरेणु जुसामो साम वृंदावने कुण किमपि गुल्म लतो सिद्धना जा दुस्त सजन आर्य पसंत हित्वा। बोले गोपियां किस प्रकार अपने आर्यपथ त्याग देकर, आर्यपथ समझते हो, अपने जो संसार धर्म आदि जो है उसको त्याग दे करके गोविंद की तरफ दौड़ रहे हैं। और कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं, गोपियां क्या करती है, इतने उन्मादिनी हो जाते, कंप्लीटली मैडनेस है। कहाँ दौड़ते हैं गोपियां? है कृष्ण को ओर दौड़ते हैं। जब कोई दौड़ना शुरू करते हैं तो देखते नहीं उसके पैर कहाँ पर पड़ रहे हैं, ऊर्ध्व गति से वो देख रहे, ऊपर से वो देख रहे, गोविंद से मिलना है बस। तो इसलिए कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं, जब
गोपियां कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके जब दौड़ेगी तो उनके पैर कहाँ पर पड़ेगी? घास पर पड़ जाएगी। है वृक्ष होकर जन्म लेने तो घास नहीं, धूल नहीं मिलेगी, किंतु देखो घास होकर के जन्म ले जाए वृंदावन में तो गोपियों की चरण धूल अति सहज रूप में मुझे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं असामो चरण रेणु जुषामोसा वृंदावने किमपि गुल्म लतोषि देना जा दुष्ट सज्जन आर्य पतन चेतवा भेज मुकुंदी श्रुति भी विवेकम है। वृंदावन में एक घास होकर जन्म लेना ये कोई साधन। ब्रह्मा जी तो हार गया, ब्रह्मा जी क्या जन्म लेने की बोल रहे हैं? गोकुल में पत्थर होकर के है, ब्रजवासी के घर में एक पत्थर के जन्म। उद्धव तो थोड़ा ऊपर आ गया, उद्धव जी कहाँ जन्म लेने के लिए बोल रहे हैं? वृंदावन में। और वृंदावन में कौन सा? एक घास होकर। आज तक भी उद्धव जी है उद्धव कुंड पर घास के रूप में होकर के कठोर तपस्या आदि, अभी तक उनकी प्राप्ति नहीं हुई, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्मी उद्धव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता के लिए प्राप्त है। जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य न सा पुरुष सद्दो वसु जो अनंत सत्य तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। ब्रह्मा नारद आदि ऐसे बड़ा भक्त लोग है। अरे द्वादश महाजन के नाम आ रही हैं, जो ब्रह्म सुख नारद भीष्म लक्ष्य राधिक न सा पुरुष सद्दो वसु चरण अनंत सत्य तम राधिका चरण अनुस्मरा। जो राधिका के चरण धूलि के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। तो एक राधा जी की चरण धूलि के इतने महिमा बोल है। और वे वृंदावन धाम इतने सुंदर, वृंदा विपिन सुरम तत्श्री मानसी गोवर्धनम है। जितने श्लोक बोले कितना सुंदर, वृंदा विपिन सुरम तत्श्री मानसी गोवर्धनम। वृंदावन के सौंदर्य क्या है? बोले गिरिराज गोवर्धन। और गिरिराज गोवर्धन के सौंदर्य क्या है? बोले राधा कुंड एंड श्याम कुंड। देखो है, ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। आज हम इसलिए बोल रहे हैं जे वास्तव जो सन्यास की तात्पर्य है इसी भाव में डूब जाए है, जिसमें मंत्र में गोपी भाव मंत्र है। जब तक गोपी भाव मंत्र नहीं आ रहे वो वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राम। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल आई गौर हरि बोल। Everyone take prasad, then go. Please, everyone, also if you want to take a book, please take a book and collect the book. And also if you want to carry on, one person go there and have your deeds blessed. This is a very auspicious day. You don't need to shave your head or take sannyas cloth. Sannyas cloth. Not so much. Hey, take this. Unless you want to, of course.